Hello, Matuji, and watching Morning Pulse on Onbill TV. Prime Minister Narendra Modi on Thursday addressed the Parliament. In his replies to the motion of thanks to the President's address in Rajya Sabha, PM Modi said big countries are very eager to have trade relations with India and the entire world is openly praising these trade deals. He stated that when the trade deal with the EU was signed, the world became more confident about the greater likelihood of global stability. After the trade deal with the US, the world became even more confident that with stability, they can sense a speed too. आदरणीय सभापति जी, देश में हुए इन प्रयासों का नतीजा सबके सामने है। बड़े-बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा की? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का At least 16 persons were reportedly killed and others injured on Thursday morning in a dynamite blast at an illegal coal mine in Meghalaya. The incident is reported to have occurred at Tangso in Sunga Ilaka region of East Jaintia Hills district, which is about 40 kilometers away from district headquarters. According to reports, the Superintendent of Police Vikash Kumar told a newspaper that 16 bodies have been recovered. However, they are yet to be identified.
An injured person was shifted to a hospital in Shillong. The SP is also quoted saying that they are unable to tell the exact number of workers trapped inside due to the smoke and fire. Deputy Commissioner Manish Kumar told Scroll that the unauthorized mine is located in a very remote area and it is now being investigated. Mention may be made that National Green Tribunal has in 2014 imposed a ban on red hole mining of coal in Meghalaya. India on Thursday said that it continues to keep its option open for sourcing crude oil from Venezuela and other regions depending on commercial viability amidst claims by the United States that it has stopped buying Russian oil and may increase imports from the US and Venezuela. Ministry of External Affairs MES spokesperson Randir Jaiswal outlined the country's broader energy security strategy amid global supply uncertainties. Responding to media queries on crude imports from Venezuela, Jaiswal highlighted India's long-standing energy engagement with Venezuela covering both trade and investment. Also, since she asked related question to Venezuela, so I would like to answer that as well. See, as far as Venezuela is concerned, it has been a long-standing partner for us in the area of energy, both on the trade side and as also on the investment side. We were importing energy or crude oil from Venezuela till 2019-20, and thereafter we had to stop. Again, we started buying oil from Venezuela in 2023-2024, but had to stop, which were halted because of reimposition of sanctions. As you are aware that Indian PSUs, they have established partnership with the National Oil Company of Venezuela, PDVSA, and they have our PSUs have maintained presence in the country since 2008. Consistent with our approach to energy security, India remains open to exploring the commercial merits of any crude supply options, including from Venezuela. Amid US President Donald Trump's claim that India has agreed to halt purchases of Russian oil, the Ministry of External Affairs reiterated that ensuring energy security for 1.4 billion people remains the top priority for the government of India, especially amid evolving global energy dynamics. MES spokesperson Randir Jaiswal said India's energy decisions are guided by national interest. Insofar as India's energy security or energy sourcing is concerned, the government has stated publicly on several occasions, including me here, that ensuring the energy security of 1.4 billion Indians is the supreme priority of the government. Diversifying our energy sourcing in keeping with objective market conditions and evolving international dynamics is at the core of our strategy to ensure this. All of India's decisions are taken and will be taken with this in mind. During his replies to the motion of thanks to the President's address in Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi launched attack on opposition parties, especially targeting the Congress. As opposition MPs create ruckus in Rajya Sabha, PM said looking at the age of Mallikarjun Kharge, he urged him sit and sloganer. For that, he faces no discomfort. The PM also said that he felt that the level of discussion should have been a little higher, especially from the opposition side, but they lost even this opportunity. आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को Sit your seat, हम please. सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को No. आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था, और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो
कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो आपको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद को अपने गरिमा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है? ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों की जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी।
आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे लिए कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? Death caused by Chinese mancha will now be considered as murder in Uttar Pradesh. This was announced by Chief Minister Yogi Adityanath on Thursday. Chinese mancha or kite strings are banned in the state, and the CM has ordered the police officials to conduct statewide raids in this regard. Chinese kite strings are glass-coated strings, and in the last 6 months, at least 7 people have lost their lives due to these strings. The latest directive comes after a man in Lucknow died when his throat was slit by one of these strings. However, despite the ban, the string continues to be available. अभियान भी चलाने को कहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्वागत करना चाहता हूं, और जो फैसला सरकार ने लिया है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि उसका अनुसरण देश में होगा। सिर्फ जांच ही नहीं करने की बात हुई है, प्रतिबंध के बाद भी अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है और किसी की दुकान से लिए गए मंझे से किसी की जान जाती है, तो उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा, उसके खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाकर उसको दंडित किया जाएगा। ये बहुत जरूरी था। आप बताइए कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल होते हैं। ये बहुत गलत है और बहुत ठोस और बड़ा निर्णायक फैसला हमारी सरकार ने किया है, और बहुत असर इसका होगा। पूरे देश के अंदर ऐसे फैसले होंगे, बहुत जरूरी था। बहुत मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। Kogunda village in Sukma district, long a symbol of fear hidden in the forest silence, gunpowder and unspoken anxieties, is now witnessing a new beginning as the memorial of notorious Maoist CC member Ramana with rupees 2.4 bounty has been demolished. For 4 decades, this structure casts a shadow of villages, making children silent and women avoid certain paths, symbolizing fear more than stone. The operation, executed by CRPF 74th Battalion under the commandant Himanshu Pandey and assistant commandants Videko and Ankit Singh, was carried out with full strategy and vigilance, sending a clear message that the politics of fear will no longer dominate. Ramana, once feared across Telangana, Odisha and Chhattisgarh, has posthumous memorial erected as symbols of martyrdom. With its destruction, years of silence were broken, relief stone in villages' eyes, and as one elder said, for the first time, it feels like we are truly free. This marks the end of Naxalite terror and the start of trust, development and constitutional triumph.
आप सब विदित है कि ये जो इलाका गोलकुंडा पहाड़ ये काफ़ी दिनों से नक्सली का अंडर में कंट्रोल में था, लेकिन अभी ये सुरक्षा बल के लिए, पुलिस और प्रशासन के लिए यहाँ आने का काफ़ी मुश्किल था, एक कट ऑफ एरिया था। लेकिन पिछले साल 14 नवंबर जो हाँ चिल्ड्रंस डे था, उस दिन जो रास्ता सड़क इस गांव में गोलकुंडा मिचीपाड़ा गांव में पहुंचा था। उसके साथ 20 नवंबर को अपना 74 बटालियन FOB फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यहाँ से इस्टेब्लिश किया है। उसके साथ बिजली भी पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है। पानी बोरवेल से गांव के लिए, जवान के लिए पानी का भी पहुंचा दिया है। हेलीपैड कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया है और स्कूल का भी बिल्डिंग बनाना शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं बिजली भी जल्दी आ जाएंगे और उसके साथ मोबाइल टावर, ये हॉस्पिटल, सोसाइटी ये वगैरह भी हो जाएंगे। आज आप लोग देख रहा है, आज जॉइंट ऑपरेशन 74 बटालियन CRPF और कोबरा 201 कोबरा गांव लोग के साथ मिलके ये शहीद समाधि स्मारक को तोड़ दिया रहा है। ये किसका स्मारक है सर? रामाना जो CC मेंबर है, ये काफ़ी बड़ा लीडर है नक्सल के लिए। तो ये बता दे रहा है कि ये 2020 से पहले बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा चौड़ा उनका है, तो हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये अच्छा एक हमें बताने में खुशी है कि ये जो आने वाला दिन में ये गांव के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका भविष्य अच्छा है और एक अच्छा दिशा की तरफ जा रहे हैं, जो विकसित और विकास की तरफ बढ़ रहा है। और हमें आशा करते हैं कि ये गांव के लिए भी जो दुनिया में जो अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है उनके साथ उनके पास भी आ जाए। इसमें बनाया गया शहीद स्मारक रामाना का नाम से। CC मेंबर रामाना था ना। हाँ जी। कब बनाए थे ये? 2020 में। यहाँ पर पहले नक्सली रहा करते थे और आते थे सर। अच्छा जी। रमन्ना मतलब कैसा था? रमन्ना को क्या आप लोग देखे थे? नहीं देखे हम लोग। अच्छा जी, मुकान तो खत्म हो गया, मतलब कि अर्पण साथ में ऐसी बना है पूरा। तो टोटल गोलकुंडा में रमन्ना के नाम पे कितना बनाया होंगे ऐसा स्मारक? गोलकुंडा पंचन में एक ही तो बना है। एक ही बना। जी। अच्छा कब बनाए थे? 2020 में। West Bengal Congress President Subhankar Sarkar said that as the state unit chief, he favors the Congress contesting the upcoming West Bengal Assembly elections independently on all 294 seats. He added that the final decision would be taken after consultations with the AICC, stressing that politics is the art of possibilities. की भी आप पैरवी करेंगे? ये हमारा पार्टी का इनार मामला है। अभ्यंतरीण जो बातचीत है, ये बातचीत होने का बाद भी पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ जाएगा, आप लोग को पास भी पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़ना चाहिए अकेले कांग्रेस को, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से मुखर होके SIR पे बात कर रही हैं, वो तो कोर्ट भी पहुंची, आर्ग्यू किया। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कुछ तो सोचा होगा कि अकेले लड़ना है। कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट में मैं ही खुद केस किया है पार्टी का तरफ से एज ए प्रेसिडेंट। हमारा केस भी उधर चल रहा है। कोई जब मुख्यमंत्री होता है उनका प्रचार ज्यादा होता है। मेरा बारे में भी हर जगह न्यूज हुआ, मैं भी केस किया प्रदेश कांग्रेस का तरफ से। और आने वाला समय में पार्टी, देखिए बाहर में कांग्रेस डेमोक्रेसी का बात करता है हमेशा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का अंदर में जो डेमोक्रेसी है उससे ज्यादा डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर में है। यानी अकेले आप लोग चुनाव लड़ेंगे? वो तो आने वाला दिन में तैयार होगा। एज ए प्रदेश कांग्रेस सभापति मैं तो 294 में लड़ना चाहता हूं। हमारा पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है। ऑल इंडिया हमारा लीडरशिप, हाईकमांड, AICC वर्किंग कमेटी, उनका साथ बातचीत करने के बाद हमारा सिद्धांत होगा। और पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है, वो भी ध्यान में रख रहे हैं। प्रमुख होकर कांग्रेस की बात रख रहे हैं लोगों के बीच में, तो आप ये मान के चले कि अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बंगाल चीफ जो है वो चाहते हैं कि अकेले लड़ाई चुनाव? मैं तो ये चाहता हूं, बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो कांग्रेस छोड़ के कोई नहीं किया। इसलिए कांग्रेस को आम जनता बंगाल का उनका जो क्राई या डिमांड है, जो कांग्रेस ही कुछ कर सकता है। नया पीढ़ी वो देख रहा है, उसका सामने जो बना हुआ है वो कांग्रेस का ही बना हुआ चीज है।
तो इतना दिन जो राज किया है वो जब कुछ नहीं कर पा रहा है, तब ये बात ऐसा ही हो रहा है जो आज देश का जो स्थिति है, वो देश का स्थिति में आज कांग्रेस को ही आगे बढ़ना है। तो बंगाल का जनता का भी यही सोच है। ममता बनर्जी के साथ जाना नुकसानदेह है आप लोगों के लिए? मेरा ख्याल से मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आई वांट टू गो अलोन, बट आवर पार्टी इज ऑल इंडिया पार्टी एंड ऑल इंडिया लीडरशिप, their direction, it will be the final word. And also, politics is an art of possibilities. In Jammu and Kashmir, over 2 lakh dog bites cases were reported across Union Territory in 2024 and 25, the government revealed on Thursday. Health Minister Sakina Itlu, responding to a question in the assembly by NC members Mubarak Kul, stated that Jammu district recorded the highest number with more than 1.26 lakh incidents. In the Kashmir division, 79,616 cases were reported, including 38,902 in 2024 and 40,714 in 2025. Srinagar recorded the highest number of cases at 35,174, followed by Baramulla with 12,882 and Anantnag with 10,818 cases. The minister added that the data was compiled from the Directorate of Health Services, government medical colleges and schemes, and assured that the government is taking measures to strengthen preventive and treatment facilities across the Union Territory. She also noted that there is no reported increase in the stray dog population within the Jammu Municipal Corporation limits. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.